Hello everyone, welcome to Achievers Academy. This is KD, and today in this video we will discuss about the IP addressing. IP addressing, that is one of the important topic in any exam, right? Either it is a GATE exam, NET exam, PGT exam, right? और it is a STAT exam, कोई भी एग्जाम है तो हर जगह पे आईपी एड्रेस से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है, राइट? एंड सम ऑफ द स्टूडेंट दे फेस प्रॉब्लम आल्सो इन आईपी एड्रेसिंग, राइट? तो मैं इजी वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं आईपी एड्रेसिंग के साथ। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस की बात करें तो ये क्या होता है? इट इज द लॉजिकल एड्रेस। IP address, that is the logical address, which can identify a system all over the world uniquely, right? Which can identify a system all over the world uniquely, and here IP stand for the internet protocol. IP stand for internet protocol, and IP having two versions. One is IPv4, IPv4, and another one is the IPv6, IPv6. So there are two versions of internet protocol, or we can say IP. One is the IPv4 and another one is the IPv6. देखिए IPv4 की बात करें तो IPv4 क्या होता है? इट इज ऑफ 32 बिट, ये 32 बिट का होता है। एंड IP6 की बात करें तो ये V6 की बात करें तो ये क्या रहेगा? इट इज ऑफ 128 बिट, right? Now next thing is, with the help of 32 bit how many number are possible, and with the help of 128 bit how many number are possible? Let's understand. If I have 1 bit, 1 बिट से कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं? सो 1 बिट से 2 नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, आइदर इट इज 0 और 1, दिस 2 नंबर आर पॉसिबल। और 2 बिट से कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं? तो 2 बिट से बात करें तो यहाँ पे 4 नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, दैट इज 00, 01, 10 and 11. These 4 number are possible. And with the help of 3 bits, how many number are possible? If we have 3 bits, then how many number are possible? We can say 000, 001, and so on, 111, right? So total numbers are 8. 8 number are possible. So how it is? Here it is 2 numbers possible. Here it is 4 number possible, and here it is 8 number possible. So we can say here it is 2 power 1 number possible. Here it is 2 power 2 number possible, right? It means 2 bit means 2 power 2, 2 power 1 if it is 1 bit, and if it is 3 bit, it is 2 power 3, means 8 number are possible. If I have 32 bits, then how many number are possible? It is 2 power 32 numbers are possible, or we can say 2 power 32 addresses are possible. Here if it is a 128 bit, we can say it is 2 power 128 numbers are possible, right? So 2 power 128 number are possible. Now what is the next thing? Next thing is that IP address की बात करें तो IP address that can be of class full IP address or that can be of class less IP address. Class full IP address, IP address की बात करें तो यहाँ पे IP address क्या हो सकता है? It can be the class full और class less. Class full and class less. एक क्लास फुल रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? क्लास लेस रहेगा. इफ इट इज क्लास फुल आईपी एड्रेस, देयर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस. क्लासेस लाइक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, राइट? इस टाइप से क्या रहेगा? क्लासेस का कॉन्सेप्ट रहेगा. इफ इट इज ए क्लास लेस आईपी एड्रेस, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस. तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस, राइट? क्लासेस का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा. सेकेंड थिंग, it can be represented with the help of CIDR notation, right?
CIDR नोटेशन से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैश की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। CIDR स्टैंड फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। CIDR का मतलब क्या है, इट इज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। Next thing is example for the classful IP address. Let me say it is a 120.10.20.30. This is a IP address, and this IP address is of class A. ये IP address क्या है, क्लास A का रहेगा। कैसे ये क्लास A का है, ये लेटर स्टेज पे मैं बताने वाला हूँ, राइट। आगे मैं समझाने वाला हूँ कैसे ये क्लास A का रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज what about the classless IP address? Let's see the example for the classless. If it is a 150.20.30.40/26. Okay, this is the example for the classless IP address. Okay, तो फर्दर ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासलेस आईपी एड्रेस का, जब आईपी एड्रेस हम कंप्लीट करेंगे, राइट। अभी के लिए मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, राइट। अभी के लिए इतना सफिशियंट है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा क्लासलेस में क्या होता है, क्लासफुल आईपी एड्रेस में क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, इफ वी टॉक अबाउट द क्लासफुल आईपी एड्रेस, देर आर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। और ये क्लासेस कैसे आई है, राइट। कैसे मतलब ये क्लासेस बनी है, ये सब बातें अब डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्लास में क्या रिजर्व्ड बिट रहेगी, या कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स रहेंगे, कितने होस्ट बनेंगे, क्लास की रेंज क्या होगी, एंड ऑल विल डिस्कस एवरीथिंग हियर। ठीक है, ये सब बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट देखिए। इनिशियली here we have pool of 2 power 32 addresses, or we can say uh, this is the cake of 2 power 32 addresses, right। और हमें क्या करना है, इस केक को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। if we want to divide into two parts, how many bits are required? We require one bit. One bit means two parts, either it is a 0 or 1, right। तो एक पोर्शन क्या रहेगा, 0 रहेगा, और दूसरा पोर्शन क्या बनेगा, दैट इज 1। तो लेट मी डिवाइड दिस वन इनटू टू पार्ट्स। तो केक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट में हमने जीरो जीरो असाइन कर दिया, और दूसरे पार्ट में हमने 1 असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो जीरो असाइन किया था, ये वाला पार्ट हमने क्लास ए को दे दिया, राइट। दिस दिस पीस ऑफ केक इज गिवन टू द क्लास ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में ये जो जीरो फिक्स किया गया है, जीरो इज द रिजर्व्ड बिट, ये जीरो रहेगी, right? This zero is the reserved bit. Okay, what about next thing is the number of network। नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे, तो हमें एक कन्वेंशन को समझना पड़ेगा। वी नो दैट इन केस ऑफ IPv4, हम यहाँ पे IPv4 की बात कर रहे हैं, और IPv4 में एड्रेस जो होगा वो क्या होता है, 32 बिट का होता है। 32 बिट मीन्स इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट्स। तो 4 ऑक्टेट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। ऑक्टेट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 8 बिट्स, राइट। ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ कि ये 8 बिट से बना होता है। और यहाँ पे कन्वेंशन होता है कि क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द नेटवर्क आईडी। ये नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेगा, और रिमेनिंग 3 ऑक्टेट्स दे विल रिप्रेजेंट द होस्ट आईडी। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, अब स्टार्टिंग का जो ऑक्टेट है जिसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स अपने को देखने हैं, तो ये नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट करेगी इसको। तो नेटवर्क आईडी में कितने बिट्स हैं, मेरे पास 8 बिट है। 8 बिट में से एक बिट को क्या कर दिया गया है, 1 बिट इज फिक्स, राइट। इट इज रिजर्व्ड, वी कैन नॉट मेक चेंज देयर, राइट। सो हियर वी कैन नॉट मेक चेंज देयर, मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 8 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट इज 7। ठीक है, तो अपने पास अभी कितने बिट हैं, 7 बिट हैं। 7 बिट से कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, कितने नेटवर्क्स पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ 7 बिट
वी कैन से 2 power 7 नेटवर्क्स आर पॉसिबल, राइट। तो कितने नेटवर्क पॉसिबल होंगे, दैट इज 2 power 7. So here we can say 2 power 7 networks are possible. Out of that we will subtract 2. इसमें से 2 माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे लेटर स्टेज पे आपको मैं बताने वाला हूँ क्यों माइनस किया हमने यहाँ से 2, ठीक है। ये 2 किस वजह से माइनस किया है ये लेटर स्टेज पे अपने को पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ होस्ट। नंबर ऑफ होस्ट की बात करें तो होस्ट आईडी के लिए कितने बिट्स हैं हमारे पास, 8 + 8 + 8 24 बिट्स, right? So with the help of 24 bit, how many number are possible? It is 2 power 24 numbers are possible. So here we can say 2 power 24 numbers are possible. Out of that we will subtract 2. ये 2 क्यों subtract कर रहे हैं ये later stage पे अपने को पता चलने वाला है। Now next thing we need to find out the range of दिस क्लास ए। क्लास ए की रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब है कि हमें मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है उसका और मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, राइट। तो रेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट ऑक्टेट से, राइट। आइदर इट इज द क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, कोई भी क्लास है, हम फर्स्ट ऑक्टेट से क्या कर सकते हैं, रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेट का मतलब देर देर विल बी द 8 नंबर ऑफ प्लेसेस, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 places आर देयर। ओके, तो 8 places रहेंगे जिसमें से फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट है बिट क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी क्लास ए के केस में। और हमें क्या चाहिए, अब मिनिमम नंबर चाहिए। मिनिमम नंबर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 0। सो वी विल पुट 0 फॉर द मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर के लिए हमने 0 पुट कर दिया। अब ये मेरे पास बाइनरी नंबर है, इसको मुझे क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑल 0 का मतलब क्या होता है, 0 होता है, राइट। ऑल 0 मीन्स इट इज 0, सो दिस नंबर इज 0। तो ये नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा। नाउ लेट्स सी द हाईएस्ट नंबर। सो मैक्सिमम नंबर क्या रहेगा, लेट्स सी, हियर इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस। फर्स्ट प्लेस पे हमेशा 0 रहेगा, ये फिक्स है। अब लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 1 पुट कर दिया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रेंज फॉर दिस वन। तो ये बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देते हैं। इसका वेट कितना होता है, इट इज 2 power 0, ये 2 power 1, ये 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5, 2 power 6 एंड ये क्या होगा, 2 power 7। अब देखिए, जहां जहां पे 1 होता है उसके वेट को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 64 32 16 8 4 2 + 1, ये सारे क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। इनको ऐड करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, इट इज 127। तो ये नंबर क्या आ जाएगा अपने पास, 127 आ जाएगा। अब 127 यहाँ पे आ गया अपने पास नंबर, दैट इज 127। इसको फाइंड आउट करने का एक शॉर्ट मेथड ये भी था कि अगर हमें इस बिट का वेट पता है कि इस बिट का वेट कितना है, 120, इट इज 2 power 7, दैट इज 128, ये 128 है। तो अगर हमें इन सब का क्या करना है, वेट फाइंड आउट करना है कि टोटल वेट क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इसमें से अगर ये सारे के सारे 1 है यहाँ पे और हमें क्या करना है, इनका वेट फाइंड आउट करना है, तो इसका एडिशन क्या होगा, इसमें से एक माइनस करेंगे, दैट इज 127। दैट विल बी द एडिशन ऑफ दिस वन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगी इसकी रेंज। अब इस रेंज में, इस वाली रेंज में क्या रहेगा, देखिए 0 और 127, कोई एड्रेस अगर 0 से स्टार्ट होगा, 0.0.0.0, राइट। अगर कोई नेटवर्क आईडी 0 से स्टार्ट होगी और कोई नेटवर्क आईडी 127 से स्टार्ट होगी, राइट। तो ये जो एड्रेसेस हैं ये दोनों ही एड्रेसेस स्पेशल काइंड ऑफ एड्रेसेस रहेंगे। ये स्पेशल काइंड के एड्रेसेस हैं, वी कैन से दीज आर द स्पेशल एड्रेसेस। वन इज यूज्ड फॉर द डीएचसीपी, एक डीएचसीपी यूज करता है और दूसरा
दूसरा कौन यूज करेगा? इट इज यूज्ड फॉर द लूप बैक टेस्टिंग। एक होता है लूप बैक टेस्टिंग पर्पज से यूज, ठीक है, इसको लूप बैक टेस्टिंग पर्पज से यूज करेंगे। तो अब डीएचसीपी का मतलब क्या है? डीएचसीपी मींस डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करता है नेटवर्क में, राइट। तो डीएचसीपी क्या करता है? ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करता है। तो ये 00 क्या होता है? 00 का मतलब ये हुआ कि ये कन्वेंशन है। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से, तो वो क्लाइंट कहता है कि ये 00 जाएगा उसके एड्रेस में। 00 जाएगा, इसका मतलब डीएचसीपी के पास जाएगा, और डीएचसीपी को पता चलेगा कि ये बता रहा है कि आई डोंट हैव आईपी एड्रेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है 00 का? आई डोंट हैव आईपी एड्रेस। और डीएचसीपी क्या करेगा फिर? उस क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करेगा, राइट। तो ये एक स्पेशल एड्रेस है। और दूसरा क्या है? 127 से जो स्टार्ट होगा, 127 से जो स्टार्ट होगा, दैट इज ऑल्सो द स्पेशल एड्रेस, जो कि क्या होगा? लूप बैक टेस्टिंग पर्पज से यूज किया जाता है। तो लूप बैक टेस्टिंग में इसको यूज करेंगे 127 वाले एड्रेस को, राइट। लूप बैक टेस्टिंग का मतलब क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लूप बैक टेस्टिंग में क्या होता है? चलिए देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक पिंग कमांड होती है, और पिंग किया हमने, हमारे सिस्टम में रन पे गए, रन पे जाके हमने एक पिंग कमांड की, और हम क्या करना चाहते हैं? गूगल की कनेक्टिविटी चेक करना पड़ता चाहते हैं। मान लीजिए ये कोई सिस्टम एस है और ये क्या है? गूगल है। और हम चाहते हैं कि गूगल का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वर्किंग में है या नहीं, ये पता करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पिंग स्पेस गूगल आईपी एड्रेस, तो गूगल का आईपी एड्रेस दे रखा मिलेगा। लेट मी से आईपी एड्रेस इज 10.20.30.40, दिस इज द आईपी एड्रेस फॉर द गूगल। जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिंग करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से या तो रिप्लाई मिलेगा, राइट, या तो रिप्लाई मिलेगा। रिप्लाई मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? गूगल का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मींस इथरनेट कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और लैन कार्ड वी कैन से, वो वर्किंग में है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और डेस्टिनेशन अनरीचेबल अगर बताता है, तो नेटवर्क में कुछ ना कुछ इश्यू है, मे बी इसका इंटरफेस कार्ड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, राइट। अगर डेस्टिनेशन अनरीचेबल आएगा, तो हो सकता है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या नहीं कर रहा? प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर ये, तो हमने क्या किया, इस सिस्टम ने गूगल का पता किया। अगर ये सिस्टम क्या करना चाहता है? अपनी खुद की कनेक्टिविटी चेक करना चाहता है कि मेरा सिस्टम नेटवर्क इंटर या मेरे सिस्टम का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी कार्ड, दैट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो ये क्या करेगा? पिंग करेगा। पिंग 127.0.0.1 अज्यूम, ठीक है। इस टाइप से क्या करेगा? पिंग करेगा। 127 से एड्रेस क्या होगा? स्टार्ट होगा। जैसे ही ये पिंग करेगा, तो अब इसको पता चल जाएगा कि मेरे खुद के सिस्टम का क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वर्किंग में है या नहीं, नेटवर्क कनेक्टिविटी है या नहीं। तो इस पर्पज से क्या करते हैं हम? इसको यूज करते हैं 127 वाले एड्रेस को, ठीक है। तो ये लूप बैक टेस्टिंग पर्पज से यूज होता है। और पिंग की बात करें, तो पिंग क्या है? पिंग इज द पैकेट इंटरनेट गोफर, राइट। पिंग क्या है? इट इज a पैकेट इंटरनेट गोफर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट थिंग, कि अभी हमें पता चल गया कि एक एड्रेस है जो 0 से स्टार्ट करेगा, और एक एड्रेस नेटवर्क एड्रेस है जो 127 से स्टार्ट करेगा। मतलब ये दोनों ही नेटवर्क आईडी क्या नहीं हो सकते? यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही स्पेशल एड्रेसेस हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने क्या किया था? 2 यहाँ से माइनस किया था, क्योंकि एज ए नेटवर्क हम क्या नहीं कर सकते? इन दोनों को कंसीडर नहीं कर सकते। तो फाइनली क्या कह सकते हैं कि क्लास ए की रेंज की बात करें, तो ये 1 से स्टार्ट होगी, और लास्ट में क्या आएगा? 126। तो क्लास ए की रेंज क्या हो जाएगी? 1 से लेके 1 to 126। दिस इज द रेंज फॉर द क्लास ए। ये क्लास ए की रेंज बनेगी। ओके, आई थिंक सबको क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर।
ओके, नेक्स्ट बात करें तो क्लास बी की बात करते हैं। क्लास बी का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? तो यहाँ पे देखिए, हमने देखा था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। ये पार्ट 0 था और ये पार्ट क्या था, 1 था। और इसको क्लास ए को असाइन कर दिया गया था। और इसमें क्लास ए के केस में रिजर्व्ड बिट क्या रहेगी, दैट इज 0। और नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने थे, 2 पावर 7 - 2। और नंबर ऑफ होस्ट इसमें कितने थे, 2 पावर 24 - 2। एंड रेंज क्या होगी इसकी, इट इज 1 to 126। दिस इज द रेंज फॉर द क्लास ए। ठीक है, ये 1 to 126, ये क्या रहेगी इसकी रेंज रहेगी, 1 to 126। ठीक है, ये क्लास ए के बारे में अपने को पता चल गया था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लास बी। अगेन ये जो पार्ट है, ये पीस ऑफ केक है, ये रिमेनिंग है। अब इसको क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अगेन दो पार्ट्स के लिए हमें क्या चाहिए, अगेन 1 बिट, 0 and 1। राइट, तो एक बिट से दो पार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो अपने को देखना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसके साथ 0 पुट कर दिया और यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। और ये दो पार्ट्स हमने कर दिए इसके। और दो पार्ट्स करने के बाद इसको फिक्स कर दिया क्लास बी के लिए। राइट, तो क्लास बी के लिए रिजर्व्ड बिट क्या हो जाएगी, 10। सो 10 इज द रिजर्व्ड बिट फॉर द क्लास बी। तो क्लास बी की बात करें तो 10 क्या हो जाएगी यहाँ पे, रिजर्व्ड बिट। 10 इज द रिजर्व्ड बिट। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास बी का कोई भी एड्रेस होगा, अगर उसको बाइनरी फॉर्मेट में देखेंगे, तो स्टार्टिंग के ऑक्टेट में, फर्स्ट ऑक्टेट में मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स क्या रहेंगी, हमेशा 10 रहेंगी। राइट, ये हमेशा क्या मिलेंगी, 10 मिलेंगी। अब देखिए, क्लास बी का कन्वेंशन क्या कहता है। हमें पता है कि आईपी एड्रेस 32 बिट का है। और ये क्या होगा, 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होगा, 1 2 3 4, 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड है। तो इट इज 1 2 3 4, 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्टेट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 8 8 बिट्स। ऑक्टेट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ 8 8 बिट्स। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट्स हैं, ये नेटवर्क आईडी के लिए यूज किए जाएंगे। और रिमेनिंग 2 ऑक्टेट्स क्या होंगे, होस्ट आईडी के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ये होस्ट आईडी पर्पज से होंगे और ये नेटवर्क आईडी पर्पज से होंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स फाइंड आउट करना है, तो हम नेटवर्क आईडी वाले पोर्शन पे जाएंगे। टोटल बिट कितनी है, 16। अब 16 में से 2 बिट क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है, तो 2 माइनस करना पड़ेगा। हाउ मेनी बिट्स आर रिमेनिंग, 14 बिट। विद द हेल्प ऑफ 14 बिट हाउ मेनी नंबर आर पॉसिबल, इट इज 2 पावर 14 नंबर आर पॉसिबल। वी कैन से 2 पावर 14 नेटवर्क्स आर पॉसिबल। अब क्या इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, नहीं, इसमें से 2 माइनस नहीं करना पड़ेगा। राइट, तो इसमें से 2 हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी स्पेशल काइंड ऑफ नेटवर्क यहाँ पे नहीं रहेगा या स्पेशल एड्रेस यहाँ पे नहीं रहेगा। व्हाट अबाउट द होस्ट आईडी, नंबर ऑफ होस्ट कितने रहेंगे। तो होस्ट आईडी की बात करें तो यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज 2 पावर 16 - 2, दीज मैनी होस्ट विल बी देयर। और अब क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करनी है इसकी रेंज। रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन वी विल टेक द फर्स्ट ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट लेंगे। फर्स्ट ऑक्टेट मीन्स 8 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स आर देयर। अब 8 बिट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 8, स्टार्टिंग में क्या आएगा, जस्ट ए मिनट, स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या आएगा, 10, ये फिक्स है। और रिमेनिंग 6 प्लेसेस पे क्या आ जाएगा, 0 फॉर द मिनिमम नंबर। यहाँ पे 0 आ जाएगा मिनिमम नंबर के लिए। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट अगर करें तो इसका वेट क्या होता है, 128 होता है। ये 128 होता है, तो फाइनली ये आ जाएगा 128। नेक्स्ट क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स आर देयर। सो हियर इट इज 10 इज फिक्स, 10 it is reserved, 10 is reserved. After that, 6 places are there. We will put 1 for the maximum number. It is 1 2 3 4 5 6. Right? We will put 1 for the maximum number. Now, what is the number here? ये number क्या बन जाएगा? So number, let's see. तो ये number क्या बनेगा? ये हो जाएगा 2 पावर 0, 2 पावर 1
टू पावर टू, टू पावर थ्री, टू पावर फोर, टू पावर फाइव। इन सब को इन सब के वेट को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जहां जहां वन है उसके वेट को ऐड करते जाएंगे। ये कितना होता है, टू पावर सेवन, और ये कितना रहेगा, टू पावर सिक्स। अब एक चीज देखिए, टू पावर सिक्स के बाद क्या है, सारे के सारे वन है, दे ऑल आर वन। मीन्स इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, टू पावर सिक्स माइनस वन, राइट। टू पावर सिक्स मीन्स 64। तो इनकी इनका एडिशन क्या हो जाएगा, 64 माइनस वन करेंगे तो 63। ये 63 हो जाएगा, ये 128। 63 प्लस 128 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट इज 191। 63 प्लस 128 कितना आ जाएगा, 191। दिस इज द रेंज फॉर द क्लास बी। तो ये बन जाएगी क्लास बी के लिए रेंज। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज द क्लास सी। देखते हैं क्लास सी का कॉन्सेप्ट कैसे आया। तो हमारे पास ये पीस ऑफ केक रिमेनिंग है, दिस पीस ऑफ केक इज रिमेनिंग, ठीक है। अगेन वी वांट टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। इसको क्या करना है, इस पीस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे दो पार्ट्स में, अगेन वन बिट, एक बिट से कर देंगे। एक बिट का मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वन वन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वन वन, और ये पार्ट जीरो हो जाएगा, राइट। जस्ट ए मिनट। ओके, ये वन वन जीरो हो जाएगा, और ये पार्टीशन क्या हो जाएगा, वन वन एंड वन। तो ये वाला क्लास सी को हमने असाइन कर दिया, राइट। तो क्लास सी को असाइन कर दिया। अब क्लास सी के केस में क्या रहेगा, इन इन केस ऑफ क्लास सी, वन वन जीरो इज द रिजर्व्ड बिट, वन वन जीरो इज रिजर्व्ड बिट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ नेटवर्क्स, तो नेटवर्क्स की बात करें तो कितने होते हैं यहाँ पे क्लास सी के केस में। देखिए क्लास सी के केस में ये जो स्टार्टिंग के थ्री ऑक्टेट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे, नेटवर्क आईडी। और जो लास्ट का ऑक्टेट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो क्लास सी में नंबर ऑफ नेटवर्क्स की बात करें तो नेटवर्क्स के लिए कितनी बिट्स रहेंगी यहाँ पे, फॉर नेटवर्क्स देयर विल बी द 8 + 8 + 8, 24 बिट्स। आउट ऑफ 24 बिट्स से 3 बिट्स आर रिजर्व्ड, तो ये फिक्स कर दी गई है, तो 3 माइनस कर देंगे यहाँ से, 20 बिट्स आर रिमेनिंग। सो विद द हेल्प ऑफ 21 बिट्स, हाउ मेनी नेटवर्क्स आर पॉसिबल, कितने नेटवर्क पॉसिबल होंगे, दैट इज 2 × 21। दीज मैनी नेटवर्क्स आर पॉसिबल इन क्लास ए, ठीक है। अब क्लास ए में नेटवर्क्स का पता चल गया। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ होस्ट। नंबर ऑफ होस्ट के लिए कितने बिट हैं यहाँ पे क्लास सी के केस में, तो 8 बिट वी हैव। तो 8 बिट से कितने नेटवर्क्स बनेंगे, वी कैन से होस्ट बनेंगे, कितने होस्ट बनेंगे, इट इज 2 × 8। सो हियर इट इज 2 × 8 - 2। तो इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे भी 2 करेंगे। किस लिए कर रहे हैं, ये आगे बेटर तरीके से समझ आ जाएगा, तो मैं आगे बताने वाला हूँ कि ये 2 माइनस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को रेंज फाइंड आउट करनी है क्लास सी के लिए। लेट्स सी द रेंज फॉर द क्लास सी। चलिए रेंज देखते हैं फिर क्लास सी के लिए क्या रहेगी। ये देखिए कि क्लास बी के केस में रेंज क्या थी, 128 to 191, दिस इज फॉर द क्लास बी। नाउ लेट्स सी द रेंज फॉर द क्लास सी। क्लास सी में क्या होगा, फर्स्ट ऑक्टेट लेंगे। फर्स्ट ऑक्टेट में क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स आर देयर, 8 प्लेसेस आर देयर। सो स्टार्टिंग प्लेस पे क्या आएगा, वन वन एंड जीरो, ये फिक्स हो जाएगा। हाउ मेनी प्लेसेस आर रिमेनिंग, इट इज 5 प्लेसेस। वी विल पुट जीरो फॉर द मिनिमम नंबर, जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे मिनिमम नंबर के लिए। और इसकी ओके, जस्ट ए मिनट। ओके, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये फिक्स कर दिया गया था, और फाइनली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होता है, 2 × 6।
टू पावर सॉरी 2 पावर 7, 2 पावर 7, और ये कितना है 2 पावर 6। 2 पावर 7 प्लस 2 पावर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 192। So value for this one is 192. Now we need to find out the largest number for this one. Largest number क्या बनेगा? For largest number again 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 places. Here it is 1 1 and 0. In starting place it is 1 1 0, right? उसके बाद क्या पुट करेंगे, 1 1 1 3 4 5, 5 टाइम 1 पुट करेंगे एंड विल कैलकुलेट द वैल्यू फॉर दिस वन। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इन दोनों का वेट अगर ऐड करें तो ये कितना हो जाता है 120, 192। ओके, ये 192 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 64 होता है, ये 32, आफ्टर 32 ऑल वंस, ये 32 है। 32 के बाद क्या है, ऑल वंस है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 31। और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 192 और 31 को जहां जहां पे 1 था उनको ऐड कर देंगे। तो 192 प्लस 31 करेंगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 192 प्लस 31 ऐड करेंगे तो फाइनली रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये 223, ये 223 हो जाएगा। एंड दिस इज द रेंज फॉर द क्लास सी, और ये हो जाएगी क्लास सी के लिए रेंज। ओके, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या बच गया, नेक्स्ट दिस पीस ऑफ केक इज रिमेनिंग। ठीक है, ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, ये वाला पीस ऑफ केक बचा हुआ है। इसको अगेन क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगेन 1 बिट रिक्वायर्ड, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 एंड 1, ये 1 आ जाएगा। इसको फिक्स कर देंगे किसके लिए, क्लास डी के लिए, और इसको फिक्स कर देंगे क्लास ई के लिए। ठीक है, तो ये ई के लिए फिक्स हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द रेंज फॉर द क्लास डी एंड ई। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्लास डी की बात करते हैं। क्लास डी की बात करें तो रिजर्व्ड बिट क्या रहेगी, ये रिजर्व्ड बिट इज, जस्ट ए मिनट, दिस 1 1 1 1 एंड 0, दिस इज व्हाट द रिजर्व्ड बिट, ये रिजर्व्ड बिट रहेगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, सो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द नंबर ऑफ नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट, वी जस्ट रिक्वायर टू फाइंड आउट द रेंज इन केस ऑफ क्लास डी। तो क्लास डी और क्लास ई के केस में जस्ट हमें क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन फर्स्ट ऑक्टेट से। फर्स्ट ऑक्टेट का मतलब क्या हो गया, 8 बिट्स, 8 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस आर देयर, राइट। तो इसमें क्या करना है अपने को, यहाँ पे 1 1 1 एंड 0 ये रिजर्व रहेगा, ये बिट्स क्या है, फिक्स है, इनको तो चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट मेक चेंज, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम नंबर के लिए 0 पुट कर देंगे, और 0 पुट करेंगे तो फाइनली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये कितना है 128, ये कितना है 64, ये 32, 128 प्लस 64 प्लस 32 ऐड करेंगे तो फाइनली नंबर क्या आ जाएगा 224। तो ये नंबर आ जाएगा 2224। नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर निकालें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस आर देयर, हियर इट इज 1 1 1 एंड 0, ये फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे पुट कर देंगे 1 1 1 एंड 1, ये 1 पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ तक इन तीनों को ऐड करें तो क्या आ गया 224 आ गया था, राइट। तो ये तो हो जाएगा 224, 224, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 16, 16 के बाद ऑल वंस है, ऑल वंस का मतलब ये कितना हो जाएगा 15, और इनको ऐड करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 224 प्लस 15 ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा 239। एंड दिस इज द रेंज फॉर द क्लास डी, ये क्लास डी के लिए रेंज बन जाएगी। ओके, सो दिस इज द रेंज फॉर द क्लास डी। नाउ फाइनली वी नीड टू फाइंड आउट द रेंज फॉर द क्लास ई। अब क्लास ई के लिए रेंज फाइंड आउट करनी है। देखिए क्लास ई की बात करें तो क्लास ई में क्या रहेगा, रिजर्व्ड बिट क्या है, इट इज 1 1 1 एंड 1, 4 टाइम 1, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द रेंज फॉर द क्लास ई। क्लास ई की रेंज क्या हो जाएगी, ये देखते हैं। तो क्लास ई की रेंज की बात करें तो लेट मी टेक फर्स्ट ऑक्टेट, हियर इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस आर देयर, we will put 1 1 1 1,
राइट। तो स्टार्टिंग में 1 1 पुट कर देंगे जो कि रिजर्व्ड बिट है, उसके बाद मिनिमम के लिए 0 पुट कर देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4, ये तो फिक्स है, ये तो 1 1 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 1 1, तो 1 आ जाएगा। तो फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 255, राइट, 255। एंड फाइनली दिस इज द रेंज फॉर द क्लास ई। ये क्लास ई के लिए क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ओके। तो फाइनली हमने क्या कर लिया, जितने भी क्लासेस थे उन सब के लिए हमने रेंज फाइंड आउट कर ली है। ठीक है। ओके, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा कि क्लास बी में रिजर्व्ड बिट क्या रहेगी, दैट इज 10, राइट। क्लास बी के केस में नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होते हैं, 2 पावर 14। क्लास बी में पर नेटवर्क कितने होस्ट होते हैं, एक नेटवर्क की बात करें तो 2 पावर 16 - 2 होस्ट पर नेटवर्क, ध्यान रखना। टोटल नेटवर्क कितने हैं, 2 पावर 14, और पर नेटवर्क कितना रहेगा, 2 पावर 16 - 2 नंबर ऑफ होस्ट। और क्लास बी की रेंज क्या रहेगी, क्लास बी की रेंज ये वाली रहेगी। तो बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर इससे एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सबनेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये कौन से नेटवर्क का है, इसकी होस्ट आईडी क्या होगी, स्टार्टिंग होस्ट क्या होगा, लास्ट होस्ट क्या होगा, लाइक दैट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करें तो ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके। और इसके अलावा क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए। तो यहाँ पे क्या है, क्लास ए, ये क्लास बी, ये क्लास सी, और ये क्लास डी, एंड क्लास ई। और क्लास ए की बात करें तो क्लास ए में जो रेंज रहेगी दैट इज 120, 1 टू 126, ये वाली रेंज रहेगी। क्लास बी के लिए रेंज क्या रहेगी, इट इज 128 to 191। क्लास सी के लिए रेंज क्या रहेगी, 192 to 223। क्लास डी के लिए रेंज क्या रहेगी, 224 to 239। एंड क्लास ई के लिए रेंज क्या रहेगी, 240 to 255। ठीक है, इट इज 240, जस्ट a minute, 240 to 255। दिस इज द रेंज फॉर द क्लास ई। ठीक है, ये रेंजेस अपने को पता चल गई। अब इसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, जैसे कि 10 डॉट 20 डॉट 30 डॉट 40, 25 डॉट 10 डॉट 5 डॉट 12। नेक्स्ट 129 डॉट 100 डॉट 5 डॉट 6। नेक्स्ट जस्ट 198 डॉट 18 डॉट 5 15 डॉट 6 और 61 है जो, ये हो जाएगा। देन 210 डॉट 5 डॉट 10 डॉट 20, 220 डॉट 258 डॉट 112 डॉट 10, एंड 252.5 @ 6.7। ये एड्रेसेस दे रखे हैं बेसिक लेवल पे। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, अगर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएं तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ये किस क्लास का रहेगा। तो क्लास हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट से हम क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्लास ए, ये किस रेंज का है, 1 to 126 के बीच का है, तो इसका मतलब ये क्लास ए का रहेगा। ये एड्रेस किसका रहेगा, तो 25 25 इस रेंज में आता है, तो ये भी क्लास ए का रहेगा।
ये एड्रेस किस रेंज का है? 128, मतलब इस वाले रेंज में आएगा, ये क्लास बी का रहेगा। ये एड्रेस किसका है? 198, 198 देखिए इस वाली रेंज में आएगा, तो ये क्लास सी का एड्रेस है। ये क्लास सी का रहेगा, ये ए का रहेगा, ये भी ए का रहेगा। ये वाला एड्रेस किस क्लास का रहेगा? 210, 210 देखिए कौन से वाले में? क्लास सी में, तो ये भी क्लास सी का एड्रेस रहेगा। 220, 220 वाला किस रेंज का रहेगा? देन 220 दैट इज ऑल्सो क्लास सी, ये भी क्लास सी का रहेगा। नेक्स्ट 252, 252 किस रेंज का रहेगा? 252 का मतलब क्लास रहेगी यहाँ पे ये वाली, मतलब ई क्लास का रहेगा, ये क्लास ई का रहेगा। ठीक है। बट एक चीज देखिए इसमें, ये क्लास तो हमें फर्स्ट ऑक्टेट से पता चल गई, बट हमें क्या करना है, कंप्लीट एड्रेस को देखना है। यहाँ पे एट द रेट लगा रखा है, एट द रेट का कोई कन्वेंशन नहीं होता है। यहाँ पे जो एड्रेस होगा या तो डोटेड डेसिमल फॉर्मेट में होगा या डोटेड बाइनरी फॉर्मेट में होगा, कभी भी एट द रेट या कोई और स्पेशल सिंबल नहीं आता है, तो ये वैलिड नहीं है, दिस एड्रेस इज इनवैलिड, ये एड्रेस इनवैलिड है। और दूसरा ये वाला देखिए यहाँ पे 220, ये क्लास सी का है, ये तो पता चल गया, बट हमें आगे भी देखना है। ये देखिए 258, 258 आउट ऑफ रेंज है ये एड्रेस क्या है? 255 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, कोई नंबर है वो 255 से किसी भी ऑक्टेट में इससे ज्यादा आएगा ही नहीं, तो ये रेंज से बाहर है, तो ये भी एड्रेस क्या रहेगा? इनवैलिड एड्रेस रहेगा। दिस एड्रेस इज द इनवैलिड एड्रेस। ओके। तो आई थिंक ये भी पता चल गया होगा, तो बेसिक बेसिक इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वाला भी रहेगा। अब एक बार आपको क्या आ गया, समझ में आ गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ढंग से, तो आपसे चाहे सब्जेक्टिव टाइप से पूछे, चाहे आपसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करा के पूछे, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, चाहे उसको सब्जेक्टिव में लिखवाए या ऑब्जेक्टिव में कराए सोल्व, आप उसको कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पेपर आ जाए, चाहे वो सब्जेक्टिव आ जाए चाहे ऑब्जेक्टिव आ जाए, डजेंट मैटर। ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो तीन क्लासेस होती हैं ए बी एंड सी, दे आर यूज्ड फॉर द यूनिकास्टिंग, ये यूनिकास्ट पर्पज से की जाती है। क्लास डी किस पर्पज से होते हैं? इट इज यूज्ड फॉर द मल्टीकास्टिंग, ये मल्टीकास्टिंग पर्पज से यूज होती है। ठीक है। ये मल्टीकास्टिंग, और ये रिजर्व कर रखी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज से। ठीक है, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज से क्या किया गया है? रिजर्व रखा गया है। अब यूनिकास्टिंग का मतलब क्या होता है? यूनिकास्टिंग का मतलब होता है वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा कि एक सोर्स रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? डेस्टिनेशन रहेगा। एक सोर्स रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? डेस्टिनेशन रहेगा। तो पैकेट कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें एक सोर्स आईपी रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? डेस्टिनेशन आईपी रहेगा। तो इस केस में क्या होता है? यूनिकास्टिंग होती है। ठीक है, तो वन टू वन रिलेशनशिप जब होती है तो क्या होता है? यूनिकास्टिंग। और यूनिकास्टिंग के लिए इन तीन क्लासेस के एड्रेस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट इज डी, क्लास डी दैट इज यूज्ड फॉर द मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए मेरे पास एक नेटवर्क है और ये इसमें होस्ट कनेक्टेड है, राइट। अब देखिए इसको हमने बोल दिया वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव और ये सिक्स। ठीक है। तो मान लीजिए कि होस्ट होस्ट नंबर वन है, ये क्या करना चाहता है? मल्टीकास्ट करना चाहता है। तो ये क्या कर सकता है? मल्टीकास्ट का मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन को क्या कर सकता है? सेंड कर सकता है। तो ये पैकेट सेंड करेगा इसको और इसको, ये तीन को भी कर सकता है, ये चार पर्सन को भी कर सकता है, ये पांच पर्सन को भी कर सकता है, और ये सेल्फ को छोड़ के जितने भी पर्सन होंगे उन सब को क्या कर सकता है? सेंड कर सकता है। जस्ट वेट वेट ए मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या कर सकता है? ये पर्सन दो पर्सन को ट्रांसमिट कर सकता है, तीन को भी कर सकता है, चार को भी कर सकता है, पांच को भी, और एंटायर नेटवर्क में जितने भी पर्सन होंगे उन सबको क्या कर सकता है? ट्रांसमिट कर सकता है। तो मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि चॉइस होगी, आप दो पर्सन को, तीन को, चार को, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे कुछ सिलेक्टेड पर्सन को क्या करना चाहते हैं? मैसेज करना चाहते हैं, तो वहां पे भी क्या कर रहे हैं? काइंड ऑफ मल्टीकास्टिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये रहेगा मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट।
और उसके अलावा अगर कोई एक पर्सन क्या करता है, इंटायर नेटवर्क में सभी को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, उस केस में क्या होगा, देयर विल बी द ब्रॉडकास्टिंग, तो उस केस में ब्रॉडकास्टिंग रहेगी। ठीक है। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीकास्टिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग, लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये एक डायग्राम है मेरे पास, और एक डायग्राम ये वाला है। इसमें हमने यहाँ पे मल्टीकास्टिंग दे दिया, और ये ब्रॉडकास्टिंग का एरिया है। ये ब्रॉडकास्टिंग का एरिया है, और ये मल्टीकास्टिंग का एरिया है। लेट मी से इट इज 1, और ये क्या है, 2। तो ये वाला डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा, इफ इट इज मल्टीकास्टिंग डेफिनेटली इट इज ब्रॉडकास्टिंग, राइट। बट ये वाला क्या कर रहा है, इफ इट इज ब्रॉडकास्टिंग डेफिनेटली इट इज मल्टीकास्टिंग। हाँ, अगर ये ब्रॉडकास्टिंग है तो क्या होता है, मल्टीकास्टिंग भी होगा डेफिनेटली। बट इफ इट इज मल्टीकास्टिंग इट मे नॉट बी ब्रॉडकास्टिंग। अगर मल्टीकास्टिंग है तो जरूरी नहीं है कि ये ब्रॉडकास्टिंग होगा, है ना। तो मल्टीकास्टिंग का ये वाला एरिया है, बट ये ब्रॉडकास्टिंग का तो नहीं है ना। हाँ, तो सही है, क्योंकि मल्टीकास्टिंग अगर है तो वो जरूरी नहीं है कि ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि मल्टीकास्टिंग का मतलब दो पर्सन को ट्रांसमिट कर दिया, ये भी क्या है, मल्टीकास्टिंग है, बट इट इज नॉट ए ब्रॉडकास्टिंग। सो दिस डायग्राम इज द वैलिड डायग्राम। ये प्रॉपर रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द बेसिक ऑफ द आईपी एड्रेसिंग। ठीक है। तो ये वाला बेसिक पोर्शन रहेगा आईपी एड्रेसिंग का। अब इससे एडवांस लेवल पे करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट होस्ट क्या होगा, एंड सो ऑन। उसके बाद हम सबनेटिंग करेंगे, सुपरनेटिंग करेंगे, राइट। और क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल।